મરહુમ અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ દ્વારા કોંગ્રેસની અલગ થઈ નવી પાર્ટી કોંગ્રેસ એપી બનાવવા માટે એક પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા ઉપર મૂકતા જ રાજકીય ભડકો થયો હતો, જે બાબતે બહેનને પણ સાથે લેવાની વાત મુખ્ય બાદ તેમની બહેન મુમતાઝ પટેલે પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી અને તેઓ હાલ કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાવા ઈચ્છતા નથી અને તેઓ કોંગ્રેસ સાથે જ તેમ પોસ્ટ કરી હતી, જે બાદ આજરોજ ફૈઝલ પટેલે અંકલેશ્વર ખાતે આવતા જ પોતાના પોસ્ટ બાબતે પત્રકારો જોડે વાતચીત કરતા સ્પષ્ટતા કરી હતી. લોકો અમારા પરિવારને ચાહે છે એટલે નવી પાર્ટી બનાવવાનું વિચાર્યું હતું. તેઓની પોસ્ટ જનતાનો અભિપ્રાય લેવા માટે હતી. તમે જુઓ, લોકો મારા પિતા મારા પ્રત્યેનો લોકોનો પ્રેમ છે. કોંગ્રેસથી અલગ નવી પાર્ટી કોંગ્રેસ એપીની સ્થાપના હાલ કરવાનો નથી. કોંગ્રેસ સામે નારાજગી છે કારણ કે 2024 પછી કોંગ્રેસ પાર્ટી કામ આપતા ન હતા. ટિકિટ પણ અન્યને આપી હતી, જેને લઈ પક્ષમાં જ નારાજગી હતી. હું અને મારા પિતા મરહુમ અહેમદ પટેલ ભરૂચ જિલ્લાના આદિવાસી તાલુકા એવા નેત્રંગ, ડેડિયાપાડા, અંકલેશ્વર સહિત જિલ્લામાં કામ કર્યું છે. અહીં લોકો કોંગ્રેસ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી પાર્ટી છોડી આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે. જો પાર્ટી બનાવી તો તેઓ ચોક્કસ અમારી જોડે પાછા આવશે. હું એ નારાજ કાર્યકરોનો અવાજ બન્યો છું અને અહેમદ પટેલે લોકોની સેવા સાથે ગુજરાત અને ભરૂચની પણ સેવા કરી છે એટલે ઓપિનિયન લેવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસના લોકો પણ અમારા સાથે છે. કોંગ્રેસ માટે સારી વાત છે. અત્યારે લહેર છે અને કાર્યકર્તા કામ કરવા માંગે છે. કાર્યકર્તાઓનું કહેવા પ્રમાણે પોસ્ટ મૂકી ઓપિનિયન લેવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પદ માટે હાઈકમાન્ડ નક્કી કરશે. હાલ પાર્ટી જોડે જ છું. પાર્ટી જે કામ આપશે તે કરીશું એ વાત ચોક્કસ છે. કોંગ્રેસમાં વિભાજન કરી નવી પાર્ટી બનાવવા જઈ રહ્યા છો, તેની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? देखिए, जो मैंने किया ओपिनियन लेने के लिए, आप બધું મારી कार्यकर्ता जो थे भरूच में, हमारे पास भरूच में नेत्रांग में आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं, उनके देवियापाड़ा से उन सब लोग चाहते थे कि हमें लड़ना चाहिए कांग्रेस के लिए या इंडिपेंडेंट के लिए भी लड़ने का उनका आइडिया दिया गया था. मैंने बहुत खुशी है कि लोग चाहते हैं हमें, हमारे परिवार को चाहते हैं. अहमद पटेल का इतना बड़ा लेगेसी था तो रिस्पॉन्स वो सारू होतु और मुझे लगता था कि ये अच्छी भाव ये तो कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात है कि लहर है और जो कार्यकर्ता है वो भी काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए. અહેમદ પટેલે કોંગ્રેસને પૂરું જીવન આપી દીધું છે, जी, તો તમે ઘરમાંથી જ આ નવી પાર્ટી ઊભી કરવા માટે કોંગ્રેસને તોડવા માટેનું શા? देखिए, जो नई पार्टी की बात थी, अब हमने डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे क्योंकि लोगों ने सपोर्ट तो दिखाया, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये स्प्लिट अच्छी नहीं होगी. मैंने सोचा, मेरी बहन का इससे कुछ मतलब नहीं है, मैंने सोचा ये स्प्लिट नहीं होनी चाहिए. लेकिन मेरे बहुत सपोर्टर्स हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप अगली दफ़ा ज़रूर लड़े, तो इसलिए हमने ओपिनियन निकाली. કોંગ્રેસમાં કોઈ પદ ન મળવાના કારણે કર્યું છે? देखिए, ये तो हाईकमान चूज़ करेगी क्या पोजीशन मिलेगी मुझे. और 24 के बाद आपको जानते हैं कि मेरी नाराज़गी भी बहुत थी कि हमें काम नहीं मिल रहा है और हाईकमान हमें हमारी टिकट उन्होंने दे दी. तो हमारे टिकट देने के बाद आपने देखा है कांग्रेस के सब वर्कर्स इतने सारे आम आदमी पार्टी में चले गए, बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया. तो बुरा लगता है कि हमारे कार्यकर्ता इतने नाराज़ हैं, इतने निराश में हैं. और मैं चाहता था कि मैं उनकी आवाज़ बनूं और वो मेरे पास मैं आवाज़ बनूं. वो चाहते थे कि मैं उनकी आवाज़ बनूं, ये वापस उनको आगे ले जाएं हम. ગુજરાતમાં કોઈ પણ નવી પાર્ટી કોઈ ખાસ પ્રદર્શન કરી નથી શકતી, તો આવું જોખમ લેવા પાછળનું કારણ શું? जो अहमद पटेल का नाम आप लोग जानते हैं, उन्होंने इस देश की सेवा और भरूच के लिए, गुजरात के लिए बहुत सेवा करी है. मुझे आज सुबह को भी कोई आया, बोला कि मुझे पापा ने MBBS पढ़ाया है, आपको कुछ ज़रूरत है. तो आप लोग समझा करिए कि ये अहमद पटेल का बेटा हूँ मैं और हमारा सपोर्ट फॉरएवर रहेगा. तो इसी बात पे हमने ये किया, ओपिनियन लिया. અહેમદ પટેલ સાથે જોડાયેલા લોકો હજુ પણ કોંગ્રેસ સાથે છે, શું એ લોકો તમારી સાથે જોડાશે? देखिए, हर रोज़ लोग बोलते हैं हम आपके साथ ही हैं, उनका मतलब क्या है?
कि हम अपने आपके साथ हैं, तो अगर कुछ हुआ भी तो वो मेरे साथ आएंगे लोग। जैसे आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के इतने लोग चले गए, अगर मेरा स्प्लिट अगर मैं सोच रहा होता कि करेंगे तो लोग तो ऑब्वियसली आते मेरे साथ। कांग्रेस के लोग के लिए हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मेरे फादर ने और मैंने भी बहुत काम किया है देवियापाड़ा में और भरूच डिस्ट्रिक्ट में और अंकलेश्वर सिटी में। हमारे फाउंडेशन है, हमारे करोड़ पब्लिक स्कूल है, हमारा VTI है, हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैं तो अपने आप को एक मॉडल सिटीजन समझता हूँ और मैं यहाँ का लोगों के उत्साह से मैं जानता हूँ कि वो मुझे चाहते हैं आगे बढ़े। सो कांग्रेस पर दबाण लावવા માટે તેના પાર્ટીમાં ગત એ થઈ રહ્યું છે। वापस बोलेंगे? कांग्रेस पर प्रेशर करने के लिए आपने ये जाहिरात की। प्रेशर की बात नहीं है, ये प्रेशर मेरी तरफ से नहीं आया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से आया है। ये वो चाहते थे कि मैं ओपिनियन बनाऊं, ओपिनियन लूँ सोशल मीडिया पे कि लोग क्या समझेंगे, और रिस्पॉन्स आप लोगों ने देखा है। जी फैजल भाई, आपने एक ट्वीट भी किया है कि वन डे DK शिव कुमार भी चीफ मिनिस्टर, जी। के पिताजी के नाम संबोधन के साथ आपने किया, वो बात क्या है? तो देखिए, JDS जो है पार्टी है, उसमें सिद्धिरमैया जी जो अभी CM है, चीफ मिनिस्टर है, पापा ही उनको बहुत साल पहले लेकर आए इस JDS से कांग्रेस में। और DK शिव कुमार को तो जानते थे पापा के सबसे खास दोस्त, सबसे खास कार्यकर्ता DK शिव कुमार थे साउथ में, और उनका रिलेशनशिप मेरे साथ भी बहुत अच्छा है। अब उन दोनों का जो, और ये बात मुझे याद है, पक्का याद है कि पापा ने भी बोला था कि ये 2 साल 2.5 साल का ये स्प्लिट होगा, 2.5 साल सिद्धिरमैया जी को मिलेंगे और 2.5 साल शिव कुमार जी को मिलेंगे। लेकिन अब आज की न्यूज़ से पता चला है, दिल्ली में भी मैंने लोगों से बात की, कि एक पीसफुल ट्रूस हो गई है और लोग चाहते हैं कि DK शिव कुमार भी समझ गए हैं, और मुझे नहीं लगता ये इनका सीट चेंज होगा अब। लेकिन मुझे ये ज़रूर ये वादा है पापा की तरफ से, उन्होंने बोला था कि 2.5 साल दोनों को चीफ मिनिस्टर बनाए। अच्छा, ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला अहमद पटेल जी का बनाया हुआ? नहीं, ये हाईकमान का था। ओके।